Hello friends, good morning. I'm personal teacher. I'm here to teach you today the chapter number 2 of Honeysuckle book 6th standard CBSE NCRT. So let's go. Before we read what we have to read in this chapter, the topic name is How the Dog Found Himself a New Master. You may know that the dog and the wolf are closely related. You may also know something about how, over the centuries, human beings have domesticated and tamed wild animals. Here is a story about how the dog became a tame animal. My dear friends, here it is told that we know about the dog and we also know about the relationship, friendship between dog and wolf, about them, about their friend, friendliness, cunningness, all these things. You may also know something about over how the human beings used to make the animal domestic and wild animals, how they used to tame them. So, we are going to read what happened with the dog. Here you can see the picture. So, your chapter starts now. Dogs were once their own masters and lived the way wolves do, in freedom. Until a dog was born who was ill pleased with his way of life. He was sick and tired of wandering about by himself. Here it is told dogs were once their own masters. अपने समय के खुद मास्टर होते थे ये जो डॉग होते थे और उसी तरीके से रहते थे जैसे कि वोल्फ रहते थे आज़ाद पूर्वक until along a dog was born who was ill pleased with his way of life. He was sick and tired of wandering about by himself, looking for food and being frightened of those who were stronger than he. वो क्या करते थे वो फूड देखा करते थे और भयभीत हो जाया करते थे उन लोगों से जो उनसे ज़्यादा स्ट्रांग और मजबूत थे. He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth. उसने सोचा और निर्णय कर लिया कि सबसे अच्छी चीज़ मेरे लिए ये होगी कि मैं किसी का कोई सर्वेंट बन जाता हूँ जो इस धरती पे मुझसे ज़्यादा किसी से ज़्यादा स्ट्रांग हो. एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर. और फिर डॉग ने ये खोजना शुरू कर दिया कि हु इज़ दैट हु इज स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन अर्थ. लेट्स सी नेक्स्ट पैराग्राफ. He walked and he met a kingsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce. Fear means dear violent or frightening. Okay. तो वो चलता गया उसकी मुलाकात एक ओल्ड फैशन्ड वर्ड है किंग्समैन एक रिलेटिव से हुई अपने ही जैसे अ बिग वॉल्फ एक बड़े जो बहुत भयानक था वायलेंट था. वेयर आर यू गोइंग डॉग द वॉल्फ आस्क्ड. जिससे मुलाकात हुई उस वॉल्फ से उसने पूछा डॉग से कहाँ जा रहे हो. आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विथ.
मैं एक आदमी की तलाश में हूँ, उसमें सेवा लेना चाहता हूँ, काम लेना चाहता हूँ। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वोल्फ? डॉग ने वोल्फ से पूछा, क्या आप मेरे मास्टर बनेंगे? आई डोंट सी वाई नॉट, द वोल्फ सेड। मैंने कहा, मतलब वोल्फ ने कहा कि वाई नॉट, एल एंड दिस एग्रीड अपॉन, और इस तरह से वो राजी हो गए। द टू ऑफ देम वेंट ऑन टूगेदर, साथ साथ फिर चलते गए आगे दोनों। They walked and they walked, and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes, and crept deeper into the forest. The dog was much surprised. Here what happens? वो चलते गए एंड ऑल ऑफ ए सडन, और अचानक वोल्फ ने अपनी आंखें नोज उठा ली। बड़ी तेजी के साथ झाड़ियों में से चले गए, बुसेस, और क्रिप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट के अंदर रेंगते हुए चला गया। द डॉग वाज वेरी मच सरप्राइज, ये देखकर बहुत सरप्राइज हुआ डॉग। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर? उसने पूछा कि क्या हो गया आपको, आपके साथ क्या हुआ? ही आस्क्ड, व्हाट हैज़ फ्राइटन यू सो? आपको कौन सी चीज़ ने इतना डरा दिया? कांट यू सी देयर इज अ बियर आउट देयर and he might eat up both us, you and me. तुम देख नहीं सकते, अंदर एक भालू है, भयंकर बियर है, एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, हम दोनों को खा जाएगा, तुम्हें और मुझे दोनों को खा जाएगा। Seeing that the bear was stronger than the wolf, ये देखते हुए कि बियर स्ट्रोंगर है वोल्फ से, द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विथ हिम, उससे कट्टी रहने का, मतलब उससे सेवा नहीं लेने का निर्णय डॉग ने कर लिया। एंड ही लेफ्ट द वोल्फ एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज फ्रेंड्स, और उसने डॉग को छोड़ दिया और फिर उसने बियर से पूछा, क्या आप हमारे मास्टर बनोगे? द बियर एग्रीड टू दिस रेपिडली, बियर तैयार हो गया इसको बड़ी तेजी के साथ, एंड सेड, लेट्स गो एंड फाइंड ए हर्ड ऑफ काउस, चलो चले और गायों के झुंड में उन्हें तलाशी, गायों के झुंड को तलाशी। आई विल किल अ क्रो एंड देन वी कैन बोथ ईट अवर फील, मैं कौवे को मार दूंगा और फिर हम दोनों इसे खा लेंगे। दे वॉकड ऑन एंड सून सॉ ए हर्ड ऑफ काउस, चलते गए और आगे जाके उन्होंने गायों का एक झुंड देखा। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू come up to it, they were stopped by a terrible noise. The cows were mooing loudly and running in a panic in all directions. क्या हुआ उसके बाद? वो अचानक जाके एक जगह रुक गए, एक भयानक आवाज़ सुन के कि गाय जो है बड़ी चिल्ले से माउइंग कर रहे थे, आवाज़ बना रहे थे, दौड़ रहे थे, भय पैनिक में दौड़ रहे थे, ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में दौड़ रहे थे गायों के झुंड। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री, फिर बियर जो है ट्री के पीछे से छिप कर देखने लगा। एंड देन ही टू रैन हास्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, उसके बाद वो भी बड़ी तेजी के से रफू चक्कर हो गया वहाँ से, किधर? फॉरेस्ट की तरफ। नेक्स्ट, नाउ why did I have to come here? Said to the dog. It is the lion who rules the forest in these parts. मैं यहाँ क्यों आया हूँ अब? डॉग ने अपने आप से कहा। इट इज़ द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट्स, इस फॉरेस्ट के इन हिस्सों में तो लायन राज करता है, लायन किंग होता है। द लायन, हु इज ही? लायन कौन है? उसने कहा। जब ये बात भालू ने उसको बताई कि राजा, ये तो लायन है जो पूरे जंगल में राज करता है। तो फिर डॉग ने पूछा, लायन हु इज ही? कौन है वो? डोंट यू नो? अब यहाँ
बियर ने बोला, डोंट यू नो ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ, इस धरती का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट है वो। वेल देन आई विल सी गुड बाय टू यू बियर। फिर उसने बोला कि ओके तब जाओ जाओ जाओ, तुम भी तो इस लायक नहीं हो, मैं तुम्हें गुड बाय बोलता हूँ। बियर को उसने, डॉग ने गुड बाय बोला। वाई ही इज डूइंग अगेन एंड अगेन दिस थिंग। फर्स्ट ही met with the wolf, he left at that. Then bear, he left at that. Now he also left to bear, and now he was searching a lion. I want a master who is stronger than anyone on earth. मैं वैसे मास्टर की तलाश में हूँ जो पूरी धरती में किसी से भी ज़्यादा स्ट्रांग है। And off the dog went to ask the lion to be his master. और लायन को अपना मास्टर बनाने की तलाश में निकल पड़ा डॉग। द लायन एग्रीड टू इट, लायन इससे तैयार हो गया जब उसने, एंड द डॉग स्टेड विथ हिम, और उसके साथ कई एक दिन डॉग रुका, एंड सर्व हिम फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम, और उसकी बहुत समय तक सेवा की। इट वॉज ए गुड लाइफ, अच्छी ज़िंदगी चल रही थी। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, उसके पास कोई शिकायत करने का नहीं था मौका कि हाँ लायन में ये कमी है, ये ऐसा है वैसा है। इट वॉज वेरी गुड गोइंग ऑन, फॉर देयर वॉज नो स्ट्रोंगर बीस्ट इन द फॉरेस्ट दैन द लायन। उसके लिए ऐसा लगा कि लायन से बड़ा कोई ऐसा बीस्ट नहीं है इस जंगल में। एंड नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे, और किसी की मजाल नहीं, हिम्मत नहीं कि टच कर सके डॉग को, हाँ, किसी भी तरीके से। बट वन डे the two of them were walking side by side along a path that ran amid bare hills, when all of a sudden the lion stopped. He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there. Then he began to back away very quietly. इसमें क्या हुआ फिर? एक दिन की बात है, दोनों निकल पड़े थे, किनारे किनारे जंगल के चल रहे थे। फिर क्या हुआ, एक हाई रॉक के पास वो निकले। व्हेन ऑल ऑफ सडन द लायन स्टॉप, अचानक जाके वहाँ लायन रुक गया। ही गेव ए ग्रेट रोड, बहुत बड़ी गुर्राहट उसने भरी, बड़ी गुस्से के साथ अपने पाँव को फैलाते हुए, बड़े गुस्से के साथ वहाँ जो होल था फॉर्म्ड, वहाँ फोर्स करते हुए, फिर बड़ी तेज़ी से साथ वहाँ से वो पीछे भागने लगा। वॉट इज़ इट मास्टर, इज़ एनीथिंग रॉन्ग, आज द डॉग सरप्राइज, बड़ी आश्चर्य के साथ उसने डॉग ने पूछा उस मास्टर लायन से कि क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या, कुछ गलती है, कुछ हुआ क्या। आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, मैंने एक आदमी को देखा है, सूंघा है कि वो इस रास्ते पे हमारी ओर आ रहा है। द लायन सेड, लायन ने ये बात कही। वी हैड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल, हमें भागना ही अच्छा, यहाँ से भागना ही सबसे अच्छा होगा, नहीं तो फिर हमारे लिए परेशानी हो जाएगी, ये लायन ने बोला। ओह वेल देन वी विल से गुड बाय टू यू, तो फिर यहाँ डॉग बोलता है कि ओह वेल, अच्छा ठीक है, तब फिर मैं तुम्हें भी गुड बाय बोलता हूँ। लायन, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ। फिर डॉग ने बोला कि मैं तो वैसा मास्टर चाहता हूँ जो इस धरती में सबसे किसी से बड़ा हो, सबसे स्ट्रोंगर हो किसी के भी कंपेयर में। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन एंड ही स्टेड विथ हिम, फिर वो आदमी के पास चला जाता है और उससे दोस्ती करता है, ज्वाइन करता है उसको, उसके साथ कई एक दिन रुकता है। एंड सर्व हिम फेथफुली, और बड़ी वफादारी के साथ उसकी सेवा करता है, बातें मानता है। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग अगो, ये चीज़ें बहुत लंबे समय तक हुआ। बट टू दिस डे द डॉग इज़ मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर, और उस दिन से आप जैसा कि जानते हैं dogs are the most loyal servant for the man, and we also know that he got his master. So this was the story of chapter number 2, standard 6,
we will be discussing next chapter. You like my video, share it and subscribe it, my dear friends, students. Now, thank you for watching this video. Bye bye.